میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر انسان اس کامیابی کو تلاش کر رہا ہے، اس کامیابی کا متلاشی ہے۔ کون سی کامیابی؟ ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے اہل بیت کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے ولیوں کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے اسلاف کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے نیک بندوں کو عطا فرمائی۔ اگر تم وہ کامیابی چاہتے ہو تو میرا اللہ فرماتا ہے کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو نمازوں میں گڑ گڑاتے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی ان کی نمازیں بھی گڑ گڑا کر ہوتی ہے۔ آج تو ہماری نمازیں ہی نہیں ہیں۔ لوگوں کو نماز کا عنوان اب اتنا پرانا لگنے لگا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں یہ نماز کے عنوان پہ گفتگو، مگر یاد رکھیے آپ کو نہیں پتا میرے رسول نے، میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ الا لا الا لا دین اللہ صلاۃ اللہ، اس کا دین نہیں ہے جس کی نماز نہیں۔ آج بلکہ ایک مقام پر فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے جس کی نماز نہیں۔ مسلم قوم مسلم کی 95% آبادی نمازی نہیں ہے۔ ایک کم و بیش 110 سے زائد صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ شادی میں نماز چھوڑ رہے ہو، خوشیوں میں نماز چھوڑ رہے ہو، عید کی خوشیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو، بیٹوں کی پیدائش کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو، لیکن آؤ ہمارے اسلاف نے کہاں نماز پڑھی؟ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو خنجر مارا گیا مسجد نبوی کے اندر، یہ سب سے پہلا حملہ تھا مسجد نبوی کے اندر جو کسی پر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے میرے نبی کی مسجد کے اندر کبھی کسی کہ پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں اگر کسی پہ حملہ ہوا، جب تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری حیات میں رہے ماحول وہی تھا، حضور کا کنٹرول۔ صدیق اکبر تھے، صدیق اکبر کا کنٹرول، فاروق اعظم تھے، ان کا اپنا بھی کنٹرول۔ کوئی ظلم نہیں ہو سکتا تھا کسی پہ، نہ کسی عورت پر نہ کسی مرد پر، لیکن چونکہ سب مسلمان تھے حالت نماز میں، ایک آتش پرست جسے مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتا تھا، وہ فاروق اعظم پہ حملہ کرتا ہے اور آپ آدھی نماز میں تھے اور نماز میں آپ پر حملہ ہوا، اور پھر کسی نے بڑھ کر کے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے یا کسی نے بڑھ کر نماز پڑھا دی، فاروق اعظم کو اٹھا کر کے لایا گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا ابھی تو نماز کا ٹائم باقی ہے اور میری نماز ہوئی نہیں۔ نماز میں تھے، حملہ ہوا، زخموں سے خون بہ رہا ہے اور اتنا زخم ہے کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے، لیکن فاروق اعظم کہتے ہیں ابھی نماز کا وقت ہے، ابھی وہ مرہم پٹی کرانے کی فکر نہیں، ابھی خون بند کرانے کی فکر نہیں، ابھی زخموں کی فکر نہیں، فکر کس کی ہے؟ نماز کی فکر ہے۔ ابھی نماز کا وقت ہے، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، کیونکہ میں نے انہی کانوں سے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے ہاتھ سے دین چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ نماز دین کا ستون ہے، ستون۔ جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کے ستون کو گرا دیا، اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے فاروق اعظم کو دیکھا کہ اسی حالت
में उन्होंने नमाज अदा की कि उनके आज़ा से खून बह रहा था। अल्लाह अकबर। और वो नमाज अदा फरमा रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और अपनी बहनों से भी पूछना चाहता हूँ, बताओ जब इस हालत में नमाज पढ़ी गई तो आज हम खुशियों के मौके पे नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। शादियों के मौके पे नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हम लोग जो है अल्लाह अल्लाह एसी में बैठ करके नमाज छोड़ रहे हैं, पंखों की हवाओं के अंदर नमाज छोड़ रहे हैं। मगर याद रखना मेरे अजीज, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कामयाबी उसी को मिलेगी जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, जो खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं मौलाना नमाज की जरूरत तो उन लोगों को है जो अल्लाह तक पहुंचे नहीं, अल्लाह के पहुंचे हुए बंदों को तो नमाज की जरूरत क्या हो सकती है। याद रखना जो अल्लाह का जितना करीबी होता जाता है उसमें इबादत की तड़प उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। अब आप सोचते हो ना कि नमाजें वो पढ़े जो अल्लाह तक नहीं पहुंचे, जिसको कोई मर्तबा नहीं मिला वो नमाजें पढ़े। इस तरह की बातें लोग बकते हैं ना, बकवास करते हैं ना। अब ये खुलफाए राशिदीन है किस मकाम पर पहुंचे हुए, जब नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बदतमीजियों से परेशान हुए तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला ये बहुत परेशान कर चुके। तो अल्लाह ने फरमाया अब एक कश्ती बनाइए। जब आप कश्ती बनाएंगे तो फिर जब कश्ती बन जाएगी तो हम एक तूफान लाएंगे, और जब तूफान आएगा तो ये सब डूब जाएंगे, जो कश्ती में सवार होंगे वही कामयाब होंगे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनानी शुरू की। अब अल्लाह की शान, जो कश्ती जो थी तो वो लकड़ी से बन रही थी। आप कश्ती बनाते तो कश्ती जितनी बनती एक दिन में, फिर शाम हो जाती, तो शाम के वक्त जब आप अपना काम मुकम्मल कर लेते और घर चले जाते तो बारीक बारीक कीड़े, जमीन के कीड़े, वो चाट डालते उस लकड़ी को। आप आकर फिर कहते भाई, फिर काम शुरू करते, फिर चाट देते, फिर काम शुरू करते, फिर वो कीड़े चाट लेते। अल्लाह से कहा मौला कश्ती बनेगी कैसे, मौला ये कश्ती बनेगी कैसे। मैं काम करता हूं ये चाट लेते हैं, मैं काम करता हूं ये चाट लेते हैं, कैसे कश्ती बनेगी, कीड़े चाट लेते हैं। अल्लाह ने फरमाया नूह, ए नूह, अगर तू चाहता है कि ये कश्ती की लकड़ियों को कीड़े न चाटे तो मेरे महबूब बंदों के नाम तू अपनी इस कश्ती में लिख दे। जो मेरे प्यारे हैं, जो मेरे महबूब हैं, उनके नाम लिख इस कश्ती पर। जब तू लिख देगा तो इसको कीड़े नहीं चाटेंगे। तो अर्ज की मौला वो कौन है, जरा तू ही बता कि नाम कौन है। तो फरमाया वो मेरे नबी के 4 यार हैं, मेरे महबूब के 4 यार हैं, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी और अली हैदर कर्रार। जब उस्मान गनी और ये जो चारों नाम लिखे नूह अलैहिस्सलाम ने लगा दिए, फिर उसके बाद उस कश्ती को कीड़ों ने नहीं चाटा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कीड़ों से भी महफूज रही और तूफान में भी महफूज रही। सोचो नूह की कश्ती पर अल्लाह का पैगंबर जिसका नाम लिखता है वो मेरे नबी के ये 4 यार हैं। अल्लाह अकबर, गौर फरमाएं। और उनमें दूसरे यार फारूक आजम, अल्लाह अकबर, उनको जो है वो जख्म लग रहा है और जख्म की हालत में भी फारूक आजम नमाज अदा फरमा रहे हैं और कहते हैं कि मैंने अपने नबी से सुना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। अब आप मुझे बताएं, जिन्हें जन्नत की बशारतें मिली हो, जिनके नाम नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर लगे हों, अल्लाह अकबर, वो लोग नमाज ना छोड़े और वो भी इस हालत में ना छोड़े, बल्कि अगर ऐसी हालत में नमाज छूट जाती तो ये तो उज़्र ही था, इतने जख्मी थे, खून बह रहा था, लेकिन उस हालत में भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। और आज मेरा जवान नमाज तर्क कर रहा है। याद रखना ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नाकाम रहोगे जब तक मस्जिदों से दूर रहोगे, नाकाम रहोगे जब तक
सजदों से दूर रहोगे, इसी तरह बिलबिलाते रहोगे, इसी तरह तड़पते रहोगे। कोई अल्लाह की मदद आने वाली नहीं है। अगर जमाने में इनकलाब चाहते हो तो अल्लाह के घरों की तरफ आना होगा, अल्लाह के घरों की तरफ पलटना होगा। जानते हो, आओ मैं एक हदीस पाक पढ़ूं और अपनी गुफ्तगू उस पर मुकम्मल करूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ देता है उसके लिए बलाएं हैं। दुनिया में चंद बलाएं, मरते वक्त चंद बलाएं, कब्र में चंद बलाएं, कयामत के दिन की चंद बलाएं। वो बलाओं में गिरफ्तार होगा। यानी नमाज छोड़ने वाला दुनिया में रहे तो बलाओं में, मरे तो बलाओं में, कब्र में जाए तो बलाओं में, कयामत के दिन उठे तो बलाओं में। अल्लाह अकबर। यही वजह तो थी कि अल्लाह अकबर, आप जिस भी नेक बंदे को देखें वो आपको नमाज का पाबंद मिलेगा। हजरत फारूक आजम अल्लाह अकबर नमाज पढ़ रहे हैं शहादत के वक्त भी, इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं शहादत के वक्त भी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस हालत में है कि बज़ाहिर मस्जिद चलकर नहीं जा सकते, तो दो लोगों के कंधों पे हाथ रखकर मेरे सरकार मस्जिद जा रहे हैं। आप अंदाजा तो फरमाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बल्कि मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा फरमाते हैं, अगर अल्लाह क़यामत में मुझे इख्तियार देगा कि मैं नमाज पढ़ूं या जन्नत में जाऊं, तो मैं जन्नत में जाने पर नमाज को तरजीह दूंगा, नमाज पढ़ूंगा। नमाज, लोग कहते हैं नमाज में क्या रखा है? मैंने कहा अली से पूछ नमाज में क्या रखा है। कुछ लोग ताना देते हैं तुम जन्नत के लिए नमाज पढ़ते हो। मैंने कहा जन्नत के लिए नमाज की क्या बात है? जिसको नमाज की लज्जत मिली वो जन्नत पर तरजीह देते हैं नमाज को। मौला अली फरमाते मैं नमाज को तरजीह दूंगा जन्नत पर। अली ये मुर्तजा कह रहे मैं नमाज। हम कौन से अली वाले हैं? हम सहाबा के नाम पे सियासत कर रहे हैं, अहले बैत के नाम पे सियासत कर रहे हैं। सिर्फ नारे ही रह गए, सिर्फ नारे ही रह गए। नारों के सिवा हमारे पास बचा क्या?